بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پریس کانفرنس جو ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پورے پاکستان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 63A جو ہے اس کو آرٹیکل 8 کو 199 کو ان ساری چیزوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ، ایسی حکومت جس کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، جس نے رپورٹڈلی پورے پاکستان میں صرف 16 سیٹیں جیتی، ایک مائنورٹی حکومت جو یہاں پہ جعلی فارم 47 کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکے، کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکے، اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھایا اور لایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا، اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً کھل کے بات کرتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا، اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا، گرفتار لفظ شاید غلط ہے، ابدکٹ کیا، اغوا کیا، ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کل پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک ایم این اے جو صاحب ہے ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایم این ایز اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ترامیم کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان 6 ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا، سرگودا کے جج نے خط لکھا تھا، یہ آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے، لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا۔ جتنی ڈس آنیسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل 60 لگ سکتا اور لگانا چاہیے ریاست کو۔ ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔
आप ये देखें कि बैट के फैसले से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन तक, उसके बाद मखसूस नशिस्तों तक, और फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरीके से रिकाउंटिंग किया, हमारे लोगों के साथ जो रवैया अपनाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे पार्टी बन गया। और मैं ये समझता हूं कि आज जो इंतशार है पाकिस्तान की सियासत में, इस इंतशार का मूजब बुनियाद जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इसीलिए हम दोबारा आज डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए और रियासत को इंश्योर करना चाहिए, वरना अवाम अपना फैसला जरूर करेंगे, और जब अवाम फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में उस दिन से सबको डरना भी चाहिए और बचना भी चाहिए। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि उसका जिक्र आज बहुत जरूरी है, उसके बाद शिबली भाई जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और वो है कल का एहतजाज रावलपिंडी। हम जलसा करना चाहते थे, मगर ये हमेशा की तरह चाहते हैं कि हमें शहरों के अंदर जलसा न करने दिया जाए। हमेशा उठा के हमें ऐसी जगह पे फेंका जाता है एनओसी दे के, और लोगों के सामने एक पेश सेविंग की जाती है कि हमने इनको एनओसी देते हैं, साथ रास्ते बंद करते हैं, साथ कंटेनर लगाते हैं, साथ हर जिले के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स जो है वो इशू करते हैं, हमारे बंदे गिरफ्तार किए जाते हैं, हमारे रास्ते रोके जाते हैं, बंदों को मारा जाता है, और फिर उनके साथ कुछ सिक्योरिटी ब्रांच है, एक रात पहले जो है वो हर जिले में हर जगह पे वही बेहुदगी और बेशर्मी जो है वो करते हैं, जो इनका शेवा रहा है। टाइम जो है वो हमें ऐसा देंगे कि 2 बजे दुनिया का केड़ा जलसा 2 बजे शुरू होके 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाता है, मगर ये पुश करते हैं और फिर पुलिस इंटरफेयर करती रहती है। मैं ये समझता हूं कि संजानी में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ लाहौर में क्या हुआ, और संजानी में तो आप ये देखें कि हमारे कायद ने इंतशार से बचने के लिए, किसी भी किस्म की बदअमनी से बचने के लिए पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दी कि हम अपनी डेट जो है वो चेंज करते हैं, मगर उसके बावजूद जब डेट चेंज की तो जो रवैया था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लियाकत बाग रावलपिंडी कल एहतजाज कर रहे हैं। बेहतर यही होता कि ये लियाकत बाग का एनओसी इशू कर देते, नहीं किया, कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन पूरे चप्पे चप्पे से पाकिस्तान के लियाकत बाग पहुंचेंगे और वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये हमारा आईनी हक है, और हमारा आईनी हक जबरदस्ती, ताकत से, बदमाशी से हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और यह एहतजाज अदलिया की आजादी, उनके तहफ्फुज, आइन के तहफ्फुज और रोज बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने घर में रह सकेगा, सब महंगाई का शिकार हैं। और हम ये समझते हैं कि अदलिया की आजादी के हवाले से, जैसे मैंने पहले आईनी तरमीम की बात की और मैं इस पर बात खत्म करूंगा, कि जो भी मुल्क लूटने वालों को तहफ्फुज देगा वो लोगों के लिए उतना ही काबिले नफरत होगा जितना मुल्क लूटने वाले काबिले नफरत है। ये वो टोला है जिन्होंने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की अवाम की दौलत पे डाका मारा, और फिर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है। यानी कि आप उन लुटेरों को जिन्होंने मईशत तबाह की उनका तहफ्फुज तो करते रहे हैं, अब आप मैंडेट चोरों को, जिनको आपने ला के बिठाया, उनका तहफ्फुज कर रहे हैं। तो मैं ये तंबीह करना चाहता हूं कि अवाम के लिए आप काबिल नफरत हो जाएंगे, लोग आपसे उससे भी ज्यादा नफरत करेंगे जितनी लोग इन चोरों से करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अब शिबली भाई जो है वो जी केसेस के हवाले से बात करना चाहते हैं। देखें, आपने हमारे जो नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास, तो सुना आपने जिस तरह का इस वक्त इस मुल्क में एक फसाइयत का एक माहौल बना हुआ है, जिसमें कि हर शख्स तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। न सिर्फ पीटीआई वाले बल्कि पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इस मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप अगर देखें तो जिस तरीके से
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, जिस तरह से उनके मुकदमात को हैंडल किया गया और किया जा रहा है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में अगर ऐसे शख्स को इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा तो आम आवाम को क्या। एक केस जो कि 4 दफा बनाया गया तोशाखाना का, ये पहली दफा होता है कि कानून में एक चीज पे आप 4 मुकदमात नहीं बना सकते एक जुर्म पे, और वो भी खुद साख्ता, मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ। खान साहब की जो तोशाखाने का केस है, जो कि बुनियादी तौर पर अलकादिर, ये 2 केसेस हैं जिनको के इस वक्त चलाया जा रहा है। तोशाखाना का केस, ये जो नैब में इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया था, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो 50 करोड़ से कम के केसेस थे, उस पे खान साहब के खिलाफ जो ये केस था वो भी ड्रॉप हो जाता और वो दूसरी नीचे अदालतों को चला जाता, लेकिन नहीं, उसको एफआईए को दिया गया। और एफआईए दिन रात एक करके, काश कि इस मुल्क में जो सारा इंसाफ का निजाम है वो आम लोगों के मुकदमात भी उसी स्पीड से चलते हैं जिस तरह के उनको किया जा रहा है। क्योंकि ये 2 अलकादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस, ये वो केसेस हैं जो कि बुनियादी तौर पे उनकी 1 मिनट की भी कैद नहीं बनती, उनको जमानतें बाकी केसेस में मिल चुकी हैं, चाहे वो 9 मई हो या और जितने भी केसेस हो। ये 2 केसेस हैं जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से सजा दी जाए, और उसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास तौर पे खान साहब की बेगम बुशरा बीबी, जिन पे कि एक ये केस है, और उसको अगर ये इस तरह से, जिस तरह से ये डिले कर रहे हैं कि उनकी तो 5 मिनट में उनकी जमानत हो जानी चाहिए इस मामले पे। देखें, बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है। बुशरा बीबी का ना सियासत से कोई ताल्लुक है और ना बाकी जो हुकूमती अमूर है उससे कोई ताल्लुक। उनको सिर्फ इस वजह से सजा दी जा रही है, उनको जेल पाबंद सलासल इस वजह से रखा जा रहा है कि वो खान साहब की वाइफ है, और खान साहब को कर्ब में रखा जाए, उनको तकलीफ पहुंचाई जाए, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ को जेल में रखकर। ऐसे दौर में जिसमें के कोई चीज छुपी नहीं रहती है, ये केसेस जिनको आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सजा मिले, भैया आप फैसला करें, आप लटकाएं नहीं। अगर आपने सजा देनी है तब भी करें आप, लेकिन मकसद ये है कि इनको पता है कि ये केसेस इतने कमजोर केसेस हैं कि ये 5 मिनट में जो है तो इसको दूसरी कोर्ट से इसको जमानत मिल जाएगी। तो उनको जिस हालत में रखा गया है बेगम बुशरा बीबी को, खान साहब को तो कोई परवाह नहीं है, वो एक एथलीट, वो गर्मियां भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से गुजार दी एक छोटे से सेल में, और वो हर तरह की फिजिकल फिटनेस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई, और जहनी तौर पे भी वो माशाल्लाह इतने मजबूत हैं कि उनको कोई नहीं तोड़ सका। इसलिए ऐसा मुल्क जिसमें ना कहीं कानून की हुक्मरानी हो, ना जिसमें आइन की हुक्मरानी हो। देखिए, रियासत का बुनियादी तौर पे जो फराइज होते हैं उनमें जान और माल और इज्जत की हिफाजत होती है। इस वक्त वो नाकायद है, और जब रियासत बुनियादी तौर पे इन फराइज को नहीं अंजाम देगी तो फिर वो अपनी लिजिटिमेसी खो देती है। अवाम और रियासत में फिर फासला बढ़ता रहता है, और ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक है। महंगाई और बाकी चीजें तो तकलीफ अवाम को दे रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ मुल्क को, अवाम को और इस मुल्क के मुस्तकबिल को देती है वो है इंसाफ की फराहमी का ना होना। जब आप आजाद अदलिया की बात करते हैं, जिस तरह के उस पर पूरी कोशिश की जा रही है, आजाद अदलिया इस मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। आजाद जजेस होंगे, आजाद फैसले होंगे, और कानून की हुक्मरानी होगी। ये बुनियादी चीज है जो कि इस वक्त जिसका फुकदान है, क्योंकि एक खास टोले के लिए, एक खास हुक्मरान टोले की मफादात के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है, जिसमें कि ये
आईनी तरामीम, जिसको कि मैं शैतानी तरामीम कहता हूँ, ये उसमें और हर तरीका आजमाया जा रहा है, जिस तरह भी इन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह से जबरदस्ती उनको कोशिश की जा रही है कि वो इस गैर आईनी अमेंडमेंट्स को वोट करें। तो बुनियादी तौर पे इस मुल्क में जो ये कहते हैं, जिस तरह के नवाज शरीफ ने, यानी आप अंदाजा करें कितनी गैर जिम्मेदाराना बात, एक शख्स जो कि 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वो एक बड़े अहम मुल्क के सफीर को कहता है कि जिन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क हमेशा इसी तरह ही चलता रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, अदम इस्तेहकाम और ये सारी चीजें पीछे। तो जिस लीडर की ये सोच हो, वो आपको क्या मुस्तकबिल दे सकता है, उसकी पार्टी क्या मुस्तकबिल दे सकती है। तो इसलिए लिहाजा जो भी लोग हैं जो कि इस वक्त ये मैनेज कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि देखिए जी, आपके बच्चों ने भी कभी ये मुल्क है, उन्होंने भी यहाँ पे रहना है, उनके लिए कम से कम आप ऐसा माहौल न बनाएं कि कोई मुस्तकबिल ही ना हो, तारीख अंधेरा हो। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, सबसे मकबूल लीडर को आपने वो दीवार के साथ लगाया हुआ है, और फिर आप समझते हैं कि इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, उससे पार्लियामान चलेगी, उससे जो है मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। नहीं हो सकता। हमें सोचना होगा और इस मुल्क के हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है। आजाद अदलिया सारे मुल्क के लोगों के लिए है, आजाद जजेस इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इंसाफ की फरहमी के लिए अहम है। तो इसलिए ये कोई एक खास पार्टी के लिए हम नहीं मांग रहे अब, क्योंकि ये मसला पूरे पाकिस्तान का हो गया, पूरे पाकिस्तानियों का हो गया। तो इसलिए हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे, बावजूद तमाम सख्तियों के, बावजूद तमाम तरह की विक्टिमाइजेशन के, हम अपनी जद्दोजहद को पुरअमन तरीके से करेंगे। कल हमारा जलसा, वो जो एहतजाज हो रहा है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को आईन और कानून के दायरे के अंदर रखते हुए करें, और इंशाल्लाह वो लोग जो ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि उनको बहाना मिल जाए कि वो हम पे पाबंदी लगाएं या वो हमें मजीद हम पे वो अपनी सख्तियां करें, गिरफ्तारियां करें, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल से ये होता आ रहा है, तो इसलिए मुल्क को नॉर्मलाइज होने दें। थैंक यू वेरी मच।